Now today, let's start with chapter number 5, coal and petroleum. In this chapter, I will tell you about the natural resources, what are fossil fuel, what is coal, what is petroleum, and some natural gases. First topic is natural resources. What are natural resources? That the resources that are present in our nature, on our earth. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? Natural resources. So all living being present on the earth requires some material. देखो हमें कुछ ना कुछ मटेरियल की नीड पड़ती है. अगर हमें सर्वाइव करना है, वी रिक्वायर some material, and the material required such as air, water and soil. And what are they referred to as? Resources on the earth. The resources is exist freely in the nature. जो freely nature में exist करते हैं उनको क्या बोला जाता है? Natural resources. ठीक है? They are used by humans in different way. Like air is used in windmill to generate electricity or to obtain wind energy. वहीं हम कोल का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वाटर का यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए एंड अदर पर्पस लाइक सनलाइट. हम कपड़े धो के बाहर डाल देते हैं ना धूप में, जिससे कपड़े ड्राई हो जाए. Now on the basis of their availability, if we talk about availability, so natural resources can be broadly divided into inexhaustible, that is renewable, and exhaustible resources, that is your non-renewable resources. So first is inexhaustible, that is your renewable resources, the resources that are present in unlimited form and they can be reversed. So the resources that are present in unlimited quantity in nature and likely to be exhausted by human activities. So what are they called? Inexhaustible resource or renewable resource. Like we have sunlight, air and water. ये क्या है आपके renewable natural resources है. Then we have exhaustible non-renewable natural resources. So the resources that are present, जो resources present हैं limited quantity में and they are exhausted by human activity. Human activity की वजह से वो खत्म हो जाता है. Like your forest, your wildlife, mineral, coal, petroleum and natural gas. What are these? These are the different resources. Now exhaustible natural resources are formed from the dead remains of living organism. These natural resources are also known as fossil fuels. इन्हें हम क्या कहते हैं? Fossil fuels. Like we have coal, petroleum and natural gas. Now we cannot think of any life activity where do we require energy. So we use fossil fuel. जैसे हम firewood का, cow dung का, cake, charcoal, coal, kerosene इनका use करते हैं. Now we have next topic that is your fossil fuels. Fuels are the material that on burning, मतलब जब भी combustion होता है वो एक energy produce करता है किस form में? Heat के form में. In a form of heat. Wood, cow dung, cakes, petrol, coal, LPG, diesel, kerosene, biogas. ये सब common example है fuels का जिनका हम use करते हैं domestic और industrial purposes में. Fossil fuel are those fuel that are formed from dead remains of plants and animals. ये किससे form होते हैं? Dead remains से. Plants और animals के dead remains से. They are exhaustible resource, coal, petroleum, natural gas. ये सब किसके example है? Fossil fuel के. So most of our energy needs are met by fossil. जितनी भी आपकी energy need है वो हम किससे met करते हैं? Fossil fuel से. Transportation, cooking, manufacture and electricity generation. ये सब किस पे depend है? Industrial है. And human activities related to urbanization, industrialization. इसने क्या करा है? जो हमारे fossil fuel है उसका depletion हो रहा है. क्या हो रहा है? Fossil fuels का depletion हो रहा है. Then we have coal. If we talk about coal, it is black color, hard substance. कैसा होता है? Black color का होता है. Sedimentary rock. It is a sedimentary rock. ये sedimentary rock है जब ये burn होता है. इसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और माइनर अमाउंट ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन के कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे. एंड दे आर मेजर टाइप ऑफ कोल. कौन कौन से होते हैं? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट. जो एंथ्रासाइट है वो हार्डेस्ट कोल है, ठीक है, जिसमें कार्बन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और एनर्जी भी ज़्यादा होती है. लिग्नाइट सॉफ्ट है, इसका लो कार्बन कंटेंट होता है. लिग्नाइट कैसा है? सॉफ्ट है और हाई ऑक्सीजन होता है, हाई. और बिटुमिनस की बात करें तो मॉडरेट है. बिटुमिनस कैसा है? मॉडरेट है
और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन और सब कुछ में यहाँ मिलेगी आपको एक मॉडरेट लेवल में। देन वी हैव कोल फॉर्मेशन। हाउ इज कोल फॉर्म? मेनी ईयर्स अगो कि जो आपका डेंस फॉरेस्ट था, जो घने जंगल थे, वो प्रेजेंट थे लो लाइंग एरियाज ऑफ फ्लैटलैंड एंड दे बरीड डाउन अंडर द सॉइल। किसकी वजह से? जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, आपने देखा होगा पेड़ वगैरह टूट जाते हैं और वो सॉइल में दब जाते, लाइक फ्लडिंग, अर्थक्वेक। They got compressed with time as more soil deposit on them. They descended deeper and deeper. जैसे soil deposit होता रहा, वो नीचे जाते रहे डीप में, मतलब डीपर जाने लगे। एंड they encountered high temperature and pressure. और जो फिर ये डेड प्लांट्स थे वो क्या हो गए, किसमें चेंज हो गए? आपके कोल में। अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल इज कार्बन। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है कोल का वो आपका कार्बन है। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट इनटू कोल, उसको हम क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन। जब हम क्या करते हैं, डेड प्लांट्स को कोल में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन। लाइक यू कैन सी ओवर हेयर, जब भी डेड प्लांट्स रिमेन, वो किसके रिएक्शन में आएंगे? कोई बैक्टीरिया के या केमिकल रिएक्शन में, तो पीट फॉर्म करते हैं। और जब पीट हीट और प्रेशर की वजह से क्या फॉर्म करता है? लिग्नाइट कोल। एंड कोल अंडरगोज मोर हीट एंड प्रेशर एंड इट बिकम्स रिचर इन कार्बन कंटेंट। तो वो कौन सा बन जाता है? बिटमिनस कोल बन जाता है। तो पहले आपका होता है लिग्नाइट कोल, उस पर हीट और प्रेशर बना तो बचा बिटमिनस कोल, फिर उसको हीट और प्रेशर मिला तो बना एंथ्रासाइट, राइट? नाउ वी स्टडी द टाइप्स ऑफ कोल। फर्स्ट इज पीट। देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये पीट है, ये लिग्नाइट है, बहुत डार्क कलर का है, बिटमिनस और आपका एंथ्रासाइट। ये क्या है? आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। Now we have peat. It is the first stage of coal formation. ये लाइट ब्राउन कलर का होता है, 60% इसमें कार्बन कंटेंट होता है, ये लेस हीट प्रोड्यूस करता है एंड मोर स्मोक प्रोड्यूस करता है। जो हीट होती है वो तो कम होती है अब, और स्मोक ज़्यादा होती है, ठीक है? इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 10 to 15 होती है। देन वी हैव लिग्नाइट, ये सेकेंड स्टेज कोल फॉर्मेशन होता है। इसको हम ब्राउन इन कलर में देखते हैं, इसमें 70% कार्बन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कोल कहते हैं। और कितना होता है? 15 to 22 केजी जूल। देन वी हैव बिटमिनस, थर्ड स्टेज है कोल की, ठीक है? इसमें आपका 80% कार्बन होता है, इसको हम हाउस होल्ड कोल में यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, ब्लैक होता है, और जब इसे हम बर्न करते हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है? इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 30 to 35 होती है। देन वी हैव एंथ्रासाइट। लेट्स टॉक अबाउट एंथ्रासाइट। ये फाइनल स्टेज होती है कोल की, इसमें 90% कार्बन होता है, ये हार्डेस्ट कोल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको कार्बन कंटेंट देखने को मिलेगा। इट बर्न्स विद डिफिकल्टी, जब एड्स कम्स विद वेरी लो वॉलेटाइल मैटर। इट इज़ नॉट यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस, ये इंडस्ट्रियल पर्पसेस में हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी जो कैलोरीज वैल्यू होती है वो 28 to 30 होती है। नेक्स्ट इज वी कैन से मोर द कार्बन कंटेंट मोर बेस्ट इज दैट कोल, लाइक एंथ्रासाइट। और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और बेस्ट कोल भी है। देन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल डिपेंड्स अपॉन इट्स कार्बन कंटेंट, और जो कैलोरीफिक वैल्यू इंक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम वुड टू एंथ्रासाइट। जैसे आप वुड से एंथ्रासाइट जाओगे तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो डे टू डे, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इन इंडिया कोल डिपॉजिट दे आर फाउंड इन मेनली इन झारखंड, ठीक है? ये आपको झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बंगाल जैसी जगह पर देखने को। देन वी हैव एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ वुड। व्हाट हैपन्स? द कन्वर्जन ऑफ वुड। हम इसमें वुड को किसमें? कोल में कन्वर्ट करते हैं विद द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। लेट्स स्टडी अबाउट द डिस्ट्रक्टिव। जब कोल को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब बिना हवा के, एयर के प्रेजेंस में, सो इट प्रोड्यूसेस वेरी यूजफुल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है? बहुत यूजफुल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बनाता है। लाइक यू कैन सी हियर कोक, ammonical liquor, your coal tar and your coal gas. First is coke. When powdered coal is heated in distillation apparatus, the substance that is left after heating is known as coal. जो भी substance बचता है हीट होने के बाद उसको हम कोक कहते हैं. इसमें 98% कार्बन है, ये पोरस है, टफ है, ब्लैक है और प्योरेस्ट फॉर्म है. लाइक चारकोल, ये किसके साथ बर्न करता है? स्मोक्स के साथ. It is very good fuel. It is used as reducing agent in the process of extraction of metal
and it is also used making fuel gases like water gas and producer gas. तो आपकी water gas होती है, producer gas होती है. Like zinc oxide plus carbon, what it gives? It gives zinc plus carbon. So carbon is used as reducing agent because it helps in separation of zinc oxide. इसका हम use करते हैं किसके separation में? Zinc oxide के. Now we had ammoniacal liquor. It is converted into ammonia sulfate by absorbing dilute sulfuric acid and ammonia sulfate. It's an excellent fertilizer. Then we have coal tar, that is liquid. आपने देखा होगा घरों पे लोग करवाते हैं, ठीक है. सो कोल tar इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट का, ये मिक्सचर होता है कार्बन कंपाउंड का, ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग पाउडर कोल. जब भी आप क्या करते हो, पाउडर कोल को हीट करते हो, तब ये ऑब्टेन होता है. इट इज थिक एंड ब्लैक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल. इट इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड एंड ऑल्सो एज अ सोर्स ऑफ डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स. और जो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है कोल तार का, वो आपको बहुत सारी केमिकल सब्सटेंसेस देता है, जिनका हम यूज़ करते हैं डाइज बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में, पेंट्स बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, ड्रग्स बनाने में और पेस्टिसाइड्स बनाने में. Example of these chemical substances are benzene, toluenol, aniline. Naphthalene balls used to repel moth and insects are also obtained from the coal tar. अब आप देखेंगे जो बिटुमिनम है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ कोल तार. जिससे रोड्स बनते हैं ना, आपने देखा होगा कोल तार की, हम रोड्स की मेटलिंग करते हैं, उसमें हम इसका यूज करते हैं. व्हाट आर इट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स? आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. सबकी परसेंटेज भी दी थी. देन वी हैव कोल गैस, जो किसका मिक्सचर है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का. ये कंबस्टेबल होती है, मतलब हीट प्रोड्यूस करती है बर्निंग पे, और ये एक्सेलेंट फ्यूल है. इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है. इसका हम यूज करते हैं एज अ लाइटनिंग फॉर लाइटनिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड स्ट्रीट्स. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल? लेट्स स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ कोल. सो थर्मल कोल, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. कुकिंग कोल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील. कोल इज यूज्ड टू मेक सिलिकॉन मेटल दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सिलिकॉन्स एंड सिलेन्स. इनका हम यूज करते हैं क्या बनाने के लिए? लुब्रिकेंट्स, वाटर रेपलेटेंट्स, डिजन्स, कॉस्मेटिक, हेयर शैम्पूज एंड टूथपेस्ट. और जो हम एक्टिवेटेड चारकोल होता है, आपने देखा होगा फेस वॉश और कॉस्मेटिक्स में भी आता है, फेस पैक भी आता है और आपका फेस वॉश भी आता है. कार्बन फाइबर, इट इज मेड फ्रॉम कोल. इट इज एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बट लाइट वेट रीइंफोर्समेंट मटेरियल जिसका हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, जैसे आपके माउंटेन बाइक्स या फिर टेनिस रैकेट्स में हम इनका यूज करते हैं. Activated carbon, they are used in filter of water and air purification. Kidney dialysis machines में भी हम इसका यूज करते हैं. Then paper manufacture में कोल जो होता है वो एक एल्यूमिनियम रिफाइनरी भी क्रिएट करता है. And thousands of different products of coal and byproduct common like soap, aspirin, solvent, dye, plastic and fibers. जैसे आपका रेयन और रायन हो गया, नायलॉन हो गया. Next topic, we have completed coal. Our next topic is petroleum. Let's study about petroleum. ये आपका Latin word petra means rock and olim means oil. मतलब ये आपका rock oil, पत्थर से निकला हुआ तेल. Now petroleum, it is a substance that occur naturally, is dark liquid. It कहाँ पे होता है? Beneath the earth surface. A large number of products like petrol, diesel, lubricant oil derived from petroleum. Its compounds can be separated. जो इसके compounds हैं उनको हम separate करते हैं with the help of fraction distillation. Then we have formation of petroleum. So petroleum and natural gas are formed from compressed organic matter. किससे form होती है? Compressed organic matter. Because of high pressure and temperature, the organic matter was transformed into petroleum. जो organic matter है उसको हम किस में transform कर देते हैं? आपके petroleum में. जो remains होता है dead organism के, वो sink करते हैं to the bottom of the sea and over period of millions they converted into petroleum under combined effect of high temperature. और जो high pressure होता है and bacteria होता है in the absence of air. Petroleum so formed passed from porous rock until it got trapped with between some
impervious rock. Then they are more volatile component of petroleum and they form a gaseous cover over petroleum. ये मिक्सचर होता है जो एक क्रूड ऑयल को क्या करता है, कवर करता है, जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं. नाउ यू कैन सी ओवर है, देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाटर है, ठीक है, एंड दिस इज ऑयल एंड दिस इज गैस. ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, ऑयल निकालते हैं. ठीक है, ये क्या है आपका पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट है. जो सबसे पहले ऑयल वेल डिग करी गई थी, ड्रिल करी गई थी, वो पेनिनसुला बे यूएसए में हुई थी. टॉप प्रोड्यूसर कौन था, सऊदी अरेबिया, रशिया, नॉर्वे, ईरान एंड यूएई. और अगर हम इंडिया में बात करें तो असम, फिर गुजरात एंड फिर मुंबई हाई, तमिलनाडु. और रिवर बेसिन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा. नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम. Petroleum is extracted from reservoir found in seabeds, river basin by drilling through pipelines. और इसको हम किससे ड्रिल करते हैं, पाइपलाइंस के थ्रू. So the places where reservoir of petroleum are found, उनको हम क्या कहते हैं, oil wells. They are called oil wells. Next we have petroleum refining process. How is petroleum refined? So petroleum, it's a mixture of various constituents like petroleum gas, petrol, diesel, lubricant oil और paraffin wax. इसको प्रोसेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, और इसको रिफाइनिंग कहा जाता है. देन एट द रिफाइनरी द क्रूड ऑयल मिक्सचर इज फ्रैक्शनेटेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन. इट इज डन इन फ्रैक्शनेटिंग टावर. क्रूड ऑयल इज हीटेड टू अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस इन फर्नेस एंड वेपर इज फेड इनटू टावर, राइट. और जो लाइट गैसेस होती हैं, light gases are the topmost fraction followed by petrol and kerosene. Diesel heaviest है, the other higher fraction are not useful and they are usually used to make asphalt to surface road. देखो हम रोड को, रोड की सर्फेसिंग करते हैं, वो इसके थ्रू ही करते हैं. पेट्रोलियम इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस ड्यू टू इट्स वर्सिलिटी यूज. इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं और ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है. क्या है, एग्जॉस्टेबल है. सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स we can use over here. This is the fraction distillate. आपने ब्यूटेन, इसमें आप देखेंगे ब्यूटेन एंड प्रोपेन 20 डिग्री. फिर आपने यहाँ से पेट्रोल डाला, कैरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स. ठीक है, एंड द ऑयल इज हीटेड इन अ फर्नेस. एक हम फर्नेस में उसको हीट करते हैं. ठीक है, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. इसका हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वॉक टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस और कार पुलिंग टू स्कूल एंड वर्क. इसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. Now various constituents of petroleum and its uses. You can see over here LPG, that is liquid petroleum gas. इसका हम फ्यूल में, घर में देखा होगा आपने, और इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं. पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग. कैरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट. ठीक है, डीजल, हैवी मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिक जनरेटर. लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए हम यूज करते हैं. पैरावैक्सीन, ऑइंटमेंट हो गए आपके, कैंडल्स हो गए, वैसलीन्स हो गए. ब्यूटमेन, पेंट हो गए. रोड सरफेसिंग के लिए अब इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट इज नेचुरल गैस. लेट्स स्टडी अबाउट द नेचुरल गैस. It consists mainly of methane with small quantities of ethane and propane. It occurs deep under the crust of the earth, oil and above the petroleum reservoirs. Some wells dug in that produces only natural gas, whereas कुछ होता है वो natural gas भी produce करता है, as well as petroleum oil भी. It is formed under the earth by the decomposition of vegetable matter lying under the water. It is carried out. हम किससे carry करते हैं इसको, anaerobic bacteria, और किसके absence में, एयर के. और नेचुरल गैस भी क्या है, अपने आप में फॉसिल फ्यूल है. इन इंडिया नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिलता है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र, कृष्णा, गोदावरी. इसका हम यूज करते हैं फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट एंड इनकर्नेशन. गैसेस लाइक ब्यूटेन, इथेन एंड प्रोपेन, दे मे बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट एंड यूज्ड एज अ फीड स्टॉक. और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजर एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. Now natural gas is most useful, clean and safe energy sources है. When natural gas burns, it gives off large amount of energy and unlike other fossil fuel. और किसी भी तरीके का जो ऐश होता है वो नहीं बचता.
ठीक है. इट कॉजेज वेरी लिटिल एयर पॉल्यूशन एज मिथेन बर्न ऑलमोस्ट कम्प्लीटली. बहुत कम एयर पॉल्यूशन होती है क्योंकि जो मिथेन होती है वो कम्प्लीटली बर्न हो जाती है. ठीक है. देन सबसे क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल है और हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस करती है. ठीक है. इसका हम एज अ क्लीनर यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट में. ये आपकी ऑर्डरलेस है एंड कैन बी स्मेल्ट इन केस ऑफ इवन स्मॉल. अगर थोड़ा सा भी लीक हो जाता है तो उसकी स्मेल आने लग जाती है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इट यूजेस. व्हाट आर इट्स यूजेस? इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हीटिंग पर्पस के लिए होम में, इंडस्ट्रीज में. इट कैन बी सप्लाइड टू होम्स एंड फैक्ट्रीज थ्रू नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स, और जिससे हम एडिशनल स्टोरेज कर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं. ये एक डोमेस्टिक फ्यूल है और एक इंडस्ट्रियल फ्यूल है. इसको हम एज फ्यूल यूज करते हैं इन थर्मल पावर स्टेशन. नाउ कंप्रेस नेचुरल गैस दैट इज CNG. अब आप देख रहे ज़्यादातर लोग CNG यूज करते हैं क्योंकि ये लेस पॉल्यूशन करती है, ऑर्डरलेस है, ये नॉन करोसिव है और इसका जो यूज़ है वो भी चीपर है, ग्रीनर है और मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव है. किसका? आपका डीजल और पेट्रोल का. सो CNG इट इज द comprised mostly of methane gas and produces engine power when mixed with air and they are fed into the engine combustion chamber. ठीक है. इसमें जो फ्यूल होता है वो स्टोर होता है एंड अ व्हीकल टू एक्सटेंड ड्राइविंग रेंज एंड मस्ट लाइक गैसोलीन टैंक इन व्हीकल. कैसा होता है? गैस वाला टैंक होता है, इसमें गैस भरी जाती है. ठीक है. You can see that we have many natural resources and some natural resources are limited. ठीक है. So some resources like are exhaustible like fossil fuel, forest and mineral. So you know that coal and petroleum they are a fossil fuel. They require dead organism million of years और वो फिर फ्यूल में कन्वर्ट होता है. ठीक है. इनको हम रिवर्स करते हैं, बहुत टाइम लगता है, hundreds of years. बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. और जो इनका यूज होता है वो किससे लिंक्ड होता है? ग्लोबल वार्मिंग से. इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल ओनली व्हेन एब्सोल्यूट नेसेसरी. हम इस फ्यूल का जब भी यूज करते हैं जब बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हो. राइट. दिस रिजल्ट विद बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेबिलिटी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इन इंडिया जो आपका पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन, इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. ये लोगों को एडवाइस करता है कि आप कैसे पेट्रोल या डीजल को सेव कर सकते हैं. ठीक है. एंड देयर टिप्स, क्या टिप्स देते हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ. ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड. एक कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे ही आपको क्या करना है? चलना. स्विच ऑफ द इंजन. जब आप ट्रैफिक लाइट पे रुके आप बंद कर दीजिए. देन इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. इंश्योर रेगुलर, आपको अपने व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस करवा. इससे क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो? पॉल्यूशन को मेंटेन कर सकते हो. राइट. दिस वॉज ऑल इन दिस चैप्टर. होप यू अंडरस्टूड what are natural resources, coal, petroleum and your fossil fuel. That's all for today. Now let's meet in the next class. Thank you.